We'll be starting this session with a short Qiraat, and then I would request Fuzail Bhai to please do a short introduction of EM. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. Thank you. Fuzail Bhai, if you can just do a short introduction of AMP and introduce the speaker so we can move forward. Sure, thank you. Very good afternoon to everybody. I see there are quite a few participants today. Um, Now, what I'll quickly do is I will introduce Association of Muslim Professionals to you via screen share. I hope you're able to see the presentation here. Um, and then followed by the introduction of our speaker for the day. Welcome to the AMP Online Career Guidance Seminar from the Association of Muslim Professionals. We've been active for over 12 years in the service of our communities and people we are benefiting, and continuously working towards the development of our community and towards the development of peace and progress and for nation building. So about AMP is registered as a non-profit organization. We are registered in India, in the United States, in United Kingdom, as well as Australia. We are also registering in a few other countries. The processes are on. AMP has completed 12 years in serving our community in the field of education, employment, as well as empowerment. We have a lot of initiatives in each one of these fields that we've taken up. Now, AMP has a vision to positively impact lives of 10 million people by 2030. And AMP's mission is to empower the underprivileged for the greater benefit of the overall society and the community, and overall the nation as well. So we want to actually build a model community which is advanced in education, basically students who and professors and universities and who contribute towards advancement of the education. And we also want to grow a community which is more socially involved and progressive with each other. India is specifically is a very vast country which is very culturally vibrant. So we want to have a model community which is very culturally vibrant as well. Politically, we want to influence the governments in terms of the development and non-profit related initiatives. We also are working towards overall improvement of the economy as a whole, and also want to develop the community which is economically dynamic, which in turn benefits the community. So that's our overall vision. I'll also tell you a bit about a few achievements of things we have achieved over the last 12 years. This being the 13th year, we have our school development program, which is our forte and which is our core. We've So the school development program basically works across many schools, close to 800 schools all across the states and cities we operate in. And each of these schools have a lot of students and teachers that we work with, in terms of developing their skills, developing the students, and a lot of those things. So as part of the school development programs, it not only includes school, it includes schools and colleges and universities where we actually work with. Now, the thing is that we have 2,750 plus skill development lectures that we've established. We've got 800 plus schools that we have connected, and 2,75,000 students have benefited so far. We have 100 plus teachers training and parenting workshops that we've executed over the last 12 years. Next, we will move to the employment assistance cell. So once the students are educated, the next thing for them is to get employment.
So we basically work on employing candidates through various job fairs and job drives that we operate with across different cities that we have operations in. And at the job fairs and job drives, we basically, have representative companies coming in who have the requirements, and we have our AMP members and the community people who want to get the jobs. So it's an engagement where we initiate the jobs and help people with their job descriptions and consultations for HR and place them and recruitment and all of that. And through that, we've employed more than 20,000 plus candidates over the last 13 years, 12 to 13 years. We've done more than 200 plus employability trainings, which has improved the overall employability of each of the candidates. We also benefited close to 15,000 plus degree students. Now, the students that actually come for the jobs are mostly students who are degree plus. So, that way we benefited more than 15,000 plus degree students who are looking for jobs across. Next, we also have a division called the Scholarships and Self-Employment Division. Through the scholarships and self-employment divisions, we ensure that all of the underprivileged and people who don't have enough resources to fulfill their education requirements and build their life, we help them through scholarships. And people who don't have enough money to run their own homes, or people who need self-employment, we also help them. So we've done 800 plus higher education scholarships, um, and this is all across the world. We've helped more than 750 plus orphans. We have 250 plus families that we work with very closely, and we also offer them help in terms of self-employment, and we've been able to get them to a phase where they're able to be self-dependent also. So it's a very important division of our initiatives, and it's continuously growing, and we're working towards that. Now, with another important thing that we realized while we were doing our work at AMP is that there are a lot of modules, a lot of inputs, and so many subjects and educations, and so many industries and fields that we work with when it comes to education and employment and scholarship. So we realized that since so many activities and initiatives are taking place, we should have a centralized resource center where anybody who's doing these activities can access the resource center independently, not only within AMP but people outside AMP as well. So we developed an AMP resource center where we have 600 plus counselors who on a real time keep counseling people who need help relating to their employment or to their school, or to their education on a real time basis. We have 2000 plus students who we have counseled directly through the AMP resource center. We are also working on a knowledge bank where we have created 50 plus documents on career guidance specifically, and it's a continuously growing bank. And we have 1000 plus career chart distribution. Now the career chart basically is a chart which talks about how a given student can move from 11 to 12 to degree, and which course if he takes in which field, where he will land up and what he can do eventually in life. So it's everybody gets a one-time shot at life. So the earlier you start off, the better. And when you have a clarity earlier on in life, it becomes easy for you as you go forward in life. So the career chart distribution helps in getting that clarity. We've distributed 1000 plus of that. And in terms of awards and partnerships, we've got a lot of awards and partnerships also. So we are associated with 280 plus renowned educationalists, and all of them work very closely along with us in terms of helping and benefiting the people who need benefits. And 30 plus partners for skill training and job fairs, including state governments that we are connected with. So we can counsel the state government, we counsel various other NGO partners also, and we work along with them as well. So we are connected with 50 plus other NGOs who work in the same domain as we do and benefit the society. So that's a very short map of what we have done, and we have a very bright future going ahead as well. So AMP reach on the ground is that we have 100 plus active chapters that we are connected.
across the entire states and that we operate in. So in each chapter we have an executive body with a secretary and various divisions, and each of our initiatives that I spoke about right now, which includes SDP or scholarships, each one of these divisions have independent operations in each one of these chapters. So we spread across 25 states. We are present in 16 plus countries. We have 6,000 plus active members who are registered with us from EMP. And overall, we have an online presence of 1,25,000 members and professionals that we're connected through. So that is about AMP. And if you want to join AMP, please, this is the address, join AMP/join AMP. And if you want to know more about AMP, you may please feel free to talk to any of us. Our email IDs are there, our mobile numbers are there, our website is there. So please feel free to speak with us, call us, and speak with us any point of time. If you need any clarifications, and we are here to help. And if you know anybody who needs help, please do drop an email to us. We will be more than glad to help anybody. So that is about AMP. With that, quickly we will move to the session for the day. Now, the session for the day is a very interesting topic. It's a topic called home science. And we have a very interesting speaker on home science, Ms. Dipali Nigam, with us. A very good afternoon to you, ma'am. And Dipali ma'am is basically got 5 years experience in teaching at the graduation level. And she's worked at the Government Girls College, Barwani, and the Devi Ahlia University, Indore. So she's going to talk to us about home science today. And ma'am, over to you. गुड आफ्टरनून सभी को। जैसे सर ने मेरा परिचय आपको दे ही दिया है, दीपाली निगम, और मैंने होम साइंस में मास्टर डिग्री किया है। जो लोग होम साइंस में या जो स्टूडेंट्स होम साइंस सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना चाहते हैं, सर आप मुझे सुन पा रहे हैं? यस मैम, हमको आवाज आ रही है अभी। आ रही है जी जी। तो जो स्टूडेंट्स होम साइंस सब्जेक्ट सिलेक्ट करना चाहते हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि होम साइंस में बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं। इसमें बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं जिनके बारे में हमको जानकारी मिलती है। सबसे पहले अगर आपने 11th और 12th होम साइंस से किया है तो आप उसके बाद उसमें यूजी डिग्री कर सकते हैं प्लस पीजी डिग्री कर सकते हैं। यूजी डिग्री 3 साल वाली और पीजी डिग्री जो है वो 2 साल की होगी। यूजी डिग्री के अंदर आप बीएससी होम साइंस कर सकते हैं, जिसमें कि आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन का ऑप्शन नहीं रहता है। होम साइंस में जितने भी सब्जेक्ट होते हैं वो सारे कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं। साथ ही जितने भी सब्जेक्ट हैं वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, थ्योरी के साथ साथ हमको हर एक सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल भी होता है, जिसमें कि हम उस सब्जेक्ट को और भी बहुत अच्छे से समझ पाते हैं और उसके बारे में ज्यादा अच्छे से जान पाते हैं। जैसे कि होम साइंस, गृह विज्ञान, नाम से ही समझ में आता है कि घर और विज्ञान। गृह विज्ञान एक घर का एक सुव्यवस्थित ज्ञान जिसके अंतर्गत हमको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है, जैसे पाक कलाएं हैं, परिवार का प्रबंधन है, वस्त्रों का ज्ञान है, इंटीरियर डेकोरेशन या ग्रह सज्जा है। इन सारी चीजों के बारे में जब हम व्यवस्थित ज्ञान लेते हैं तो वो पूरा हमको गृह विज्ञान के अंदर मिलता है। गृह विज्ञान की जो शिक्षा है या एजुकेशन है, उसके माध्यम से हम अपना तो विकास करते ही करते हैं, हमारा पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, साथ में हम हमारे फैमिली को भी डेवलप कर सकते हैं और उसको बहुत अच्छे से संचालित कर सकते हैं। तो जैसे कि बीएससी होम साइंस में मैंने बताया कि कुछ कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं, उसमें हमको मेनली जो है 5 सब्जेक्ट होते हैं। फूड एंड न्यूट्रिशन, जिसे आहार एवं पोषण, एक होता है मानव विकास, एक होता है गृह प्रबंध एवं आंतरिक सज्जा, जिसके अंदर हम घर के अंदर की सजावट के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट होता है वस्त्र विज्ञान एवं परिधान, प्रसार एवं संचार। ये 5 मुख्य विषय होते हैं या मेन सब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें हम यूजी डिग्री करते हैं, प्लस इसी में से किसी एक सब्जेक्ट को आप सिलेक्ट करके उसमें पीजी डिग्री भी की जा सकती है। अब जैसे कि फूड एंड न्यूट्रिशन, आहार एवं पोषण, अब इसमें हम 3 साल में जो डिग्री करते हैं उसमें फूड एंड न्यूट्रिशन का जो बेसिक होता है वहां से स्टार्ट किया जाता है कि आहार क्या होता है, पोषण कैसे होता है, किस किस प्रकार का पोषण होता है, कौन कौन से फूड आइटम्स होते हैं, किस फूड को लेने से कौन सा न्यूट्रिशन हमको मिलता है, न्यूट्रिशन की कमी से क्या हो सकता है, अधिकता से क्या हो सकता है, मतलब हर एक बारीकी के बारे में हमको उसमें बताया जाता है।
फूड एंड न्यूट्रिशन। दूसरा है जो मैंने बताया आपको मानव विकास, HD जिसे कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट। इस ह्यूमन डेवलपमेंट के अंतर्गत जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है मानव विकास, मानव का संपूर्ण विकास का अध्ययन इस विषय के अंतर्गत बताया जाता है। जब शिशु के जन्म पूर्व की अवस्था की जैसे ही कोई महिला गर्भ धारण करती है तो वहां से उस स्टेज से लेकर कि कैसे शिशु का विकास हो रहा है अंदर, कैसे गर्भस्थ शिशु बढ़ रहा है, कैसे उसकी चीजों बन रही है, कैसे उसका जन्म होता है, वहां से लेकर तो मृत्यु तक का इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। इसमें सारी चीजें बताई जाती है, बीच बीच में बहुत सारी स्टेजेस आती हैं जैसे कि शेषवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वयस्कावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। ये हमारे पूरे जीवन की अलग अलग कई अवस्थाएं हैं। व्यक्ति इन अवस्थाओं में कैसे समायोजन करता है, कैसे समस्याओं से कैसी किस किस प्रकार की समस्याएं आती है, शरीर में किस किस प्रकार के बदलाव होते हैं, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत पढ़ने के लिए मिलती है। साथ में यहाँ पर न्यूट्रिशन का भी रोल आ जाता है कि इन सारी अवस्थाओं में किस प्रकार के न्यूट्रिशन की हमको आवश्यकता होती है। तो ये दोनों सब्जेक्ट आपस में मतलब होम साइंस के जितने भी सब्जेक्ट हैं वो आपस में एक दूसरे से कोरिलेट, कोई भी सब्जेक्ट अलग नहीं है, हर एक सब्जेक्ट हर दूसरे सब्जेक्ट के साथ जुड़ा हुआ है। कि अगर मानव विकास की बात करेंगे तो जैसे व्यक्ति शिशु का विकास हो रहा है तो उसको हमको किस प्रकार का आहार देना है, किस प्रकार का उसको भोजन देना है, कौन कौन से न्यूट्रिएंट उसके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी चीजें उसको दी जानी चाहिए, ये सारी चीजें इसमें बताई जाती है। अगला जो है वो है गृह प्रबंध एवं आंतरिक सज्जा, जिसके अंतर्गत हम गृह सज्जा के बारे में पढ़ते हैं। घर में कैसे हम उसको मैनेज करना है, किस प्रकार का घर होना चाहिए, फर्श कैसा होना चाहिए, कलर कैसा होना चाहिए, कलर स्कीम्स, हम कलर्स को इसमें बहुत ही डीप में और बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़ते हैं कि प्राइमरी कलर्स, सेकेंडरी कलर्स, किस कलर को मिक्स करने से कौन सा कलर बनेगा और उन कलर्स का यूज हम फिर अपने घर को डेकोरेट करने में कर सकते हैं, किस प्रकार से घर को सजा सकते हैं। इसके अंदर हम बजट के बारे में भी पढ़ते हैं, मैनेजमेंट किस प्रकार से किया जाता है। अगर घर में कोई फंक्शन हमने ऑर्गेनाइज किया है तो हमको उसका मैनेजमेंट कैसे करना है, अगर कोई बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज की है तो हमको उसका डेकोरेशन कैसा होगा, कौन सी डिशेस बनेगी, कितने गेस्ट आ रहे हैं, किस प्रकार से इन्विटेशन देना है, वो सारी चीजें इसके अंदर तक पढ़ाई जाती है और सिखाई जाती है। अगला जो है वस्त्र विज्ञान एवं परिधान, जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है वस्त्रों का विज्ञान और उससे कैसे परिधान का निर्माण होता है वो सारी चीजें। तो इसमें भी एक रेशे से लेकर कि किस पौधे से कौन सा रेशा प्राप्त होता है, उस रेशे से कैसे तंतु बनता है, उस तंतु से कैसे कपड़े का निर्माण होता है और उस कपड़े से हम किस प्रकार से परिधान का निर्माण करते हैं, वो सारी चीजें इसमें हमें बताई जाती है। साथ में कई सारी बहुत सी चीजें कि वस्त्रों की देखभाल कैसे की जा सकती है, अगर किसी प्रकार का कोई दाग लग गया है, फॉर एग्जाम्पल कि अगर किसी कपड़े पर कोई दाग लग गया है तो हमें उसको कैसे निकालना है, कैसे उसको रिमूव करना है। अभी जैसे अगर हम घर में होते हैं तो हम ड्राई क्लीन पे भेज देते हैं, तो वो ड्राई क्लीन वाला करता क्या है आखिर उस दाग को निकालने के लिए, वो सारी चीजें हमें यहाँ पर बताई जाती है कि अगर आपने वस्त्र विज्ञान के बारे में जानकारी ली है तो आपको फिर ड्राई क्लीनिंग पे कपड़े भेजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर सारी चीजें डिटेल में बताई जाती है और पढ़ाई जाती है कि आप कैसे उन चीजों को रिमूव कर सकते हैं या कैसे उन चीजों से डील कर सकते हैं। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है प्रसार एवं संचार, एक्सटेंशन एंड कम्युनिकेशन, यहाँ पर पूरा ये जो है प्रसार और संचार की बात की जाती है। एक्सटेंशन एंड कम्युनिकेशन ये जो है कि आप अपनी सूचनाओं को या अपनी जानकारियों को किस माध्यम से दूसरों तक पहुंचाते हैं, आप कौन सा जरिया यूज करते हैं उसके लिए, कौन सा माध्यम यूज कर सकते हैं। प्रसार एवं संचार इसमें सरकार की कई सारी योजनाएं, जैसे कि एक एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं कि कन्या भ्रूण हत्या, ठीक है, अब बहुत सारे दहेज प्रथा, उसके लिए बहुत सारे कानून बने हैं, बहुत सारी चीजें हैं। गाँव में अभी भी इंटीरियर बहुत ज्यादा ऐसे इलाके हैं जहाँ पर लोगों को बहुत सारी गवर्नमेंट की योजनाओं के बारे में और चीजों के बारे में पता नहीं है। तो प्रसार एवं संचार में जो प्रसार कार्यकर्ता या संचार कार्यकर्ता होता है वो गवर्नमेंट की तरफ से भेजा जाता है या उनकी तरफ से अपॉइंट किया जाता है कि हमारे द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है उसको आपको लोगों तक पहुंचाना है। तो इसमें भी अलग अलग माध्यम होते हैं कि आप किस किस चीजों के माध्यम से, जैसे हम अब एक जगह बहुत सारे लोगों को हम इकट्ठा नहीं कर सकते हैं, पहले सेमिनार होता था, अब यही चीज कैसी होगी चेंज होकर वेबिनार में कन्वर्ट हो गई है कि अब हम ऑनलाइन भी बात कर सकते हैं कि हम फिजिकली वहां पर अवेलेबल नहीं है बट हम मोबाइल के थ्रू है, लैपटॉप के थ्रू है, उससे हम एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं। तो ये एक हमारा नया तरीका बन गया है। तो इसी प्रकार से प्रसार एवं संचार में भी कई सारे अलग अलग तरीकों के माध्यम से सूचनाएं एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाई जाती है, जिसमें बहुत सारी डिटेल में इसमें पढ़ाया जाता है, जैसे नुक्कड़ नाटक है, फ्लैश कार्ड है, पोस्टर है, चार्ट्स है,
बोर्ड्स वगैरह होते हैं, लाउड स्पीकर्स होते हैं, पेम्पलेट्स है, न्यूज़पेपर्स है, रेडियो है, ऐसे कई सारे माध्यम हैं जिनके माध्यम से हम सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं। तो ये तो हुई हमारे विषयों की बात कि हम यूजी में कौन कौन से विषय पढ़ते हैं और उनमें उनके अंदर हमें कौन कौन सी चीजें पढ़ाई जाती है। साथ ही इन्हीं सब्जेक्ट में से हम किसी एक सब्जेक्ट को लेकर पीजी डिग्री भी कर सकते हैं। पीजी डिग्री जो है हमारी वो तो 2 साल की है, यूजी हमारा 3 साल का था, पीजी 2 साल का है। अब पीजी में भी फूड एंड न्यूट्रिशन, वापस से वही एचडी, एक्सटेंशन एंड कम्युनिकेशन, टेक्सटाइल एंड क्लॉथिंग और होम मैनेजमेंट, इन्हीं 5 में से किसी एक सब्जेक्ट में आप यूजी डिग्री कर सकते हैं। यूजी डिग्री पीजी डिग्री कर सकते हैं। अब पीजी डिग्री में भी अगर आपने फूड एंड न्यूट्रिशन लिया तो फूड एंड न्यूट्रिशन के लिए भी बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज है कि आप कौन कौन सी जॉब प्रोफाइल में जा सकते हैं या कौन कौन से जॉब आप कर सकते हैं। जैसे आप डाइटिशियंस बन सकते हैं। आपने फूड एंड न्यूट्रिशन से आपको एमएससी करना कंपलसरी है। अगर इसके साथ में आप कोई डिप्लोमा किया है, क्योंकि न्यूट्रिशन के एचडी के इनके अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो आप डिप्लोमा भी कर सकते हैं। जो ओपन यूनिवर्सिटीज है, इंदिरा गांधी, इग्नू के माध्यम से कई सारे न्यूट्रिशन के एचडी के बहुत सारे ऐसे डिप्लोमा होते हैं होम साइंस के, जिनको भी आप कर सकते हैं। वो आपका एक एडिशनल हो जाता है कि अगर आपने मानव विकास में एमएससी किया है लेकिन अगर आप न्यूट्रिशन की फील्ड में भी जाना चाहते हैं या कोई ऐसा जॉब ऑफर निकला है जिसको आप न्यूट्रिशन न होने के कारण मिस कर रहे हैं, तो आप ऐसा कोई डिप्लोमा कर सकते हैं। इग्नू में ऐसे है, चाइल्ड केयर न्यूट्रिशन है, कम्युनिटी न्यूट्रिशन है, ऐसे 6 महीने के सर्टिफिकेट कोर्सेज है जिनको करके आप दोनों जॉब को ले सकते हैं। आपके पास एचडी तो है ही है, साथ में आपके पास एक एक्स्ट्रा ऑप्शन हो जाता है जैसे कि आप कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी मिस न करें। अब जैसे डाइटिशियन, अगर आपने न्यूट्रिशन से एमएससी किया है तो आप डाइटिशियन का जॉब कर सकते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट बन सकते हैं, वहीं लेक्चरर हो सकते हैं। डीएड बीएड अगर आपने किया है या एमएड किया है तो आप किसी स्कूल में जॉब कर सकते हैं। साथ ही आप डाइटिशियन का भी जो एरिया है वो बहुत बड़ा है। डाइटिशियन आप किसी एक पर्टिकुलर डिसीज को लेकर भी डाइटिशियन या काउंसलर बन सकते हैं, डाइट काउंसलर बन सकते हैं। जैसे कि अगर डायबिटीज है तो आप डायबिटीज एजुकेटर बन सकते हैं, डायबोडाइटिशियन बन सकते हैं। आपने पर्टिकुलर कैंसर के पेशेंट्स के ऊपर काम किया है, उनके बारे में अगर आपने पढ़ाई की है तो उसके लिए अलग से ट्रेनिंग होती है, तो आप ऑन्कोडाइटिशियन बन सकते हैं। ऐसे ही आप स्पोर्ट्स की फील्ड में, स्पोर्ट्स में न्यूट्रिशन का बहुत ही ज्यादा रोल होता है। जितने भी एथलीट्स हैं, जितने भी स्पोर्ट्स होते हैं, आजकल फिटनेस सेंटर्स में, फिटनेस सेंटर हर कोई अपने फिटनेस को बहुत ही कॉन्शियस होता है, तो आप अपना खुद का पर्सनल क्लिनिक भी डाल सकते हैं। आप वहां पर भी काउंसिल कर सकते हैं लोगों को। और स्पोर्ट न्यूट्रिशन के लिए भी अलग से कोर्सेज होते हैं। कई सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो स्पोर्ट न्यूट्रिशन के सर्टिफिकेट कोर्सेज भी करवाती है। साथ में मैं बताना चाहूंगी कि K11 करके एक संस्था है जिनके ऑनर है केजाद कपाड़िया। वो न्यूट्रिशन के सर्टिफिकेट कोर्सेज करवाते हैं जो कि 6 महीने का स्पोर्ट न्यूट्रिशन होता है। उसमें वही क्लासेस होती है, एग्जाम होता है, प्रैक्टिकल होता है और उसके बाद K11 का सर्टिफिकेट मिलता है। तो वो पहले बॉम्बे में होता था, अब वैसे इंदौर में भी वो अवेलेबल, अगर कोई करना चाहता है स्पोर्ट न्यूट्रिशन के लिए तो वो कर सकते हैं। उसमें भी बहुत अच्छा जॉब मिल सकता है। प्लस डाइटिशियन एक क्लिनिकल डाइटिशियन होता है जो उपचारात्मक पोषण के लिए है, जहाँ पर आप पेशेंट को डील कर सकते हैं। किसी हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हैं, किसी सेंटर पर जॉब कर सकते हैं, या पेशेंट को अपना क्लिनिक अगर तो आप घर पर भी देख सकते हैं। प्लस आप उनको पर्सनल विजिट भी दे सकते हैं। स्कूल में आजकल न्यूट्रिशन का है, आप एनजीओ के साथ जुड़कर काम कर सकते हैं। कई सारे पोषण पुनर्वास केंद्र है जैसे एनआरसी, वहां पर भी एक पोस्ट होता है डाइटिशियन के लिए, वो भी वहां पर आप जॉब कर सकते हैं। साथ ही डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी एक डाइटिशियन का गवर्नमेंट का पोस्ट होता है। तो अगर आपने यूजी डिग्री भी अगर आपने किया है होम साइंस में तो भी आप उस जॉब को कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपने एचडी से, मानव विकास से अगर आपने एमएससी किया है तो उसमें भी कई सारे हैं। जैसे लेक्चर, आपने 5 अगर सब्जेक्ट में से किसी भी सब्जेक्ट में अगर एमएससी किया है तो आप लेक्चरर और प्रोफेसर तो आप बन ही सकते हैं। मतलब किसी कॉलेज में विख्याता के रूप में, किसी स्कूल में टीचर के रूप में तो उनको पढ़ा सकते हैं। साथ में एचडी में जो है प्ले स्कूल खुद का खोला जा सकता है। आप झूला घर खोल सकते हैं, मॉन्टेसरी है, किंडर गार्डन है, उस प्रकार की एजुकेशन उसमें दे सकते हैं। साथ ही महिला बाल विकास विभाग में भी जॉब कर सकते हैं। और भी कई सारे इसमें ऐसे जॉब्स हैं
जो अलग अलग संस्थाओं के द्वारा है, जैसे न्यूट्रिशन से या किसी स्कूल में है तो न्यूट्रिशन और एचडी दोनों से रिलेटेड वहां पर भी कई स्कूल जो है अलग से वैकेंट रखते हैं पदों को या अपॉइंट करते हैं वो, तो वहां पर भी आप काम कर सकते हैं। गृह प्रबंध अगर लिया है तो आप इंटीरियर डिजाइनर का काम कर सकते हैं, काउंसलर का काम कर सकते हैं। फिर इंटीरियर डिजाइनर का जो है या आंतरिक सज्जा जो है आजकल अब बहुत ज्यादा प्रचलन में है, क्योंकि जो पार्टीज का क्रेज है अभी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। बर्थडे पार्टी हुआ या कोई शादी हुआ या कोई भी एनिवर्सरी हुआ, किसी भी प्रकार की, क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है वो छोटे छोटे मोमेंट्स को बहुत ज्यादा अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। तो उस सेलिब्रेशन के लिए वो लोग डेकोरेशन भी होता है, फूड भी होता है, किस प्रकार का मैनेजमेंट होगा, ये सारी चीजें होती है। तो वहां पर हम अपना खुद का एक सेंटर खोल सकते हैं, या अपनी तरफ से भी प्लान कर सकते हैं, छोटी मोटी पार्टीज या छोटी पार्टीज ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। उनको कैसे डेकोरेट करना है, कैसे वहां पर डिजाइन करना है। साथ में अगर आपने टेक्सटाइल में अगर एमएससी किया है तो वस्त्र विज्ञान एवं परिधान जिसको कहते हैं, तो इसमें आप कलर कंसल्टेंट का भी जॉब एक होता है, वो कर सकते हैं। साथ में फैशन डिजाइनर बन सकते हैं। जो टेक्सटाइल एंड क्लॉथिंग कंपनीज होती है उनके साथ काम कर सकते हैं। वहां पर भी जॉब होता है अलग अलग कंपनीज में जो टेक्सटाइल से रिलेटेड है, वहां पर काम किया जा सकता है। साथ में स्कूल में कई सारे सिलाई केंद्र होते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा आजकल सिलाई सिखाई जाती है जो निशुल्क होती है महिलाओं को, तो वहां पर आप ट्रेनिंग दे सकते हैं। साथ में मैम आपका वॉइस चला आवाज गया, फिर यू चला आर गया ऑन फिर म्यूट। से। हेलो, अभी आ रहा है, अभी आ रहा है, म्यूट हो गया था। तो सुन पा रहे हैं? हाँ आवाज आ रही है आपकी अभी। जी, ओके। तो टेक्सटाइल एंड क्लॉथिंग के बारे में बता रही थी कि अगर आप टेक्सटाइल एंड क्लॉथिंग में एमएससी करते हैं तो फैशन डिजाइनर का सबसे अच्छा ऑप्शन होता है। इसमें आप हेलो हेलो। हेलो, हाँ मैम आ रही है आवाज आपकी। ओके। टेक्सटाइल एंड क्लॉथिंग में अगर आपने एमएससी किया है तो आप फैशन डिजाइनर्स वाला जॉब भी कर सकते हैं, खुद का आप बुटीक खोल सकते हैं, सिलाई केंद्र खोल सकते हैं, आप प्रशिक्षण दे सकते हैं। गवर्नमेंट के द्वारा कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स चलाए जाते हैं जिसमें सिलाई सिखाई जाती है, तो वहां पर भी आप अपॉइंट हो सकते हैं। तो ये जो था ये टेक्सटाइल का है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीजें सिखाई जाती है। आप घर पर भी अपना सिलाई केंद्र चला सकते हैं, सिलाई सिखा सकते हैं। साथ में प्रसार एवं संचार में अगर आपने एमएससी किया है तो आप उसमें एनजीओ के साथ काम कर सकते हैं एक्सटेंशन के लिए। और भी हेलो हेलो, हाँ मैम। हेलो यस यस, वी कैन हियर यू मैम। हेलो। हेलो, या मैम कुछ। जी जी, सुन पा रहे हैं? हाँ अभी आ रही। आपका आपका ओके, मगर कैमरा थोड़ा डाउन है। कैमरा सर एक सेकंड में देखती हूँ। हेलो। हेलो, यस मैम, वी कैन हियर यू, प्लीज प्रोसीड। ओके ओके सर। अगर आपने एक्सटेंशन एंड कम्युनिकेशन सब्जेक्ट को चूज किया है तो उसमें आप अगर एमएससी करते हैं तो आप एनजीओ के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। लोगों को जैसे कि पब्लिक रिलेशंस है उस प्रकार का जॉब कर सकते हैं। साथ में आप हेलो यस मैम, वी कैन हियर यू, प्लीज प्लीज गो ऑन। हेलो। हेलो दीपाली मैम, आपका आवाज नहीं आ रहा है।
हेलो, अब आ रहा है सर? बहुत अब आ ज्यादा। रहा है, अब आ रहा है, अब आ रहा है। हेलो। हाँ सर, सुन पा रहे हैं? हाँ, अभी आ रहा है आवाज आपका। बट ये नेटवर्क पूरा है। हेलो। हेलो। हाँ। हाँ सर, सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन पा रहा हूँ मैम, आपका आवाज आ रहा है, मगर द थिंग इज इट्स ब्रेकिंग। बीच बीच में टूट के आ रहा है आवाज आपका। हाँ, सर हो सकता है नेटवर्क के कारण प्रॉब्लम हो रहा है। हो सकता है, हो सकता है मैम। तो आप हाँ, आप कंटिन्यू कीजिए, नो प्रॉब्लम, अभी क्लियर ओके है। ओके ओके। तो ये जो मैंने बताए, ये 5 विषय मेन हैं। इसके अंतर्गत यूजी और पीजी दोनों किया जा सकता है। इसमें बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज है। साथ में कुछ और भी ऐसी चीजें हैं, जैसे अपैरल इंडस्ट्री प्रोडक्शन मैनेजर का जॉब किया जा सकता है। जैसे मैंने बताया, कलर कंसल्टेंट का जॉब किया जा सकता है। कलर कंसल्टेंट, क्योंकि हम टेक्सटाइल के अंदर और मैनेजमेंट के अंदर कलर को बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़ते हैं। डाइट कंसल्टेंट के बारे में मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि जैसे डाइटिशियन है, न्यूट्रिशनिस्ट है, इनके बारे में भी मतलब इस प्रकार का भी जॉब किया जा सकता है। चाइल्ड डेवलपमेंट, कई सारी चाइल्ड डेवलपमेंट केयर की, बच्चों की किस प्रकार से डेवलपमेंट होती है, उनकी किस प्रकार से केयर करनी है, जैसे कि प्ले स्कूल है, झूला घर है, कई सारे स्कूल्स है, वहां पर भी इनको अपॉइंट किया जाता है। साथ में रेस्टोरेंट मैनेजर, क्योंकि आपको न्यूट्रिशन का नॉलेज है, तो आप रेस्टोरेंट मैनेजर है, फूड इंडस्ट्री जॉब्स है, बेकिंग एंड कन्फेक्शनरी जॉब्स भी कर सकते हैं, अपना खुद का बेकरी डाल सकते हैं। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो हमको फूड प्रोवाइड करती है, जैसे कि आपने हर एक फूड आइटम, जो भी अगर आपने कभी ध्यान दिया हो, लिया है, तो हर एक फूड आइटम के पीछे चाहे वो चिप्स का पैकेट हो या एक चॉकलेट हो या कोई भी चीज हो, उसके ऊपर एक पीछे न्यूट्रिटिव वैल्यू डला होता है कि उसमें आप जिस चीज को ले रहे हैं उसमें आपको कितना कैलोरी मिल रहा है, कितना प्रोटीन मिल रहा है, कितना फाइबर मिल रहा है, सारी चीजें कि उस चॉकलेट को खाने से या उस वेफर्स को लेने से आपको आपकी बॉडी में कितना न्यूट्रिशन जा रहा है या कितने न्यूट्रिएंट आपकी बॉडी को मिल रहे हैं। तो ये सारी चीजें बताने के लिए उस कंपनी में या उस फूड फैक्ट्री में एक न्यूट्रिशनिस्ट या एक डाइटिशियन अपॉइंट किया जाता है, तो आपको वो जॉब भी मिल सकता है, आप वो जॉब भी कर सकते हैं। क्योंकि उसके बिना कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करना पॉसिबल नहीं है। वो हर एक कंपनी को उस तरह की जो डिटेल्स होती है वो डालना अनिवार्य होता है। तो वो भी जॉब एक किया जा सकता है। साथ में आप अपना खुद का बेकरी डाल सकते हैं, रेस्टोरेंट डाल सकते हैं, रेस्टोरेंट में मैनेजर का जॉब कर सकते हैं, फ्रीलांस कंसल्टेंट बन सकते हैं कि आप लोगों को कंसल्टेंट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि अपना पर्सनल क्लिनिक डाल सकते हैं या पर्सनली लोगों को विजिट करके चीजें बता सकते हैं या समझा सकते हैं, तो उसका चार्जेस अलग से होता है। तो ये सारे इसके सारे ऑप्शंस थे। और साथ में एक और चीज था, इंक्लूडिंग कैटरिंग वाला। ठीक है, भोजन संबंधी जितना भी है वो फूड एंड न्यूट्रिशन में हमको नॉलेज मिला ही है। हमने यूजी अगर किया है, साथ में पीजी अगर न्यूट्रिशन में किया है, तो हमको न्यूट्रिशन और फूड के बारे में तो सारी जानकारी मिल ही गई है। तो इसीलिए जो कैटरिंग वाला होता है या जो कैटरिंग वाला जो पार्ट है, जो खान पान का विज्ञान या खान पान से संबंधित चीजें हैं, तो हमने देखा है कि कई सारी शादियों में, पार्टियों में, कई सारी फैक्ट्रीज में, ऑफिसेज में आजकल फूड प्रोवाइड किया जाता है। कई सारी ऐसी कंपनी है, होटल्स है, रेस्टोरेंट्स है जो फूड प्रोवाइड करते हैं। तो वो फूड कोई आम कैटरर नहीं होते। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हॉस्पिटल्स में, हर हॉस्पिटल्स में आजकल डाइट प्रोवाइड किया जाता है। स्कूल्स में जैसे मिड डे मील होता है, तो वहां पर बच्चों का एक पूरा 7 डेज का एक मील का वो बना हुआ है, शेड्यूल बना हुआ है कि 7 दिन या 6 दिन उनको कौन कौन सा मील देना है, कितनी मात्रा में देना है, क्या क्या चीजें देना है, वो सारी चीजें। तो वो एक होम साइंस ग्रेजुएट पर्सन ही बता सकता है कि किस व्यक्ति को कितने न्यूट्रिशन की आवश्यकता है, उसको कितनी मात्रा में कैलोरी मिलनी है, कितना मात्रा में प्रोटीन चाहिए है, किस व्यक्ति को कितने डाइट की आवश्यकता है, कौन सी चीजें अवॉइड करनी है, कौन सी चीजें दी जानी चाहिए, ये सिर्फ एक होम साइंस ग्रेजुएट पर्सन ही बता सकता है। तो इसीलिए जो फैक्ट्रीज होती है या जो कंपनीज है जो फूड प्रोवाइड करती हैं ऑफिसेस को, तो उन कंपनीज में इस प्रकार की भी एक वैकेंट पद होता है जहां पर जॉब किया जा सकता है। और इसमें क्योंकि ये किसी आम कैटरर के बस की बात नहीं है, क्योंकि जो होम साइंस ग्रेजुएट पर्सन होते हैं उन्हीं को इसके बारे में पता होता है, क्योंकि किसी के लिए आहार आयोजन करना
तो वो भी एक सैद्धांतिक पक्ष होता है कि उसमें भी सिद्धांत होते हैं कि किस आधार पर भोजन को तैयार करना है। जैसे कि हॉस्पिटल में अगर डाइट दिया जाएगा, हॉस्पिटल में कई सारे पेशेंट होते हैं जिनको अलग अलग प्रकार के डिसीज है। कोई शुगर पेशेंट भी हो सकता है या डायबिटिक पेशेंट हो सकता है, कोई बीपी वाला हो सकता है, किसी को रीनल डिसीज हो सकती है, किसी को कार्डियो प्रॉब्लम हो सकता है। तो ऐसे अलग अलग डिसीज है, तो हर एक डिसीज में एक जैसा भोजन नहीं दिया जा सकता। हर एक डिसीज में अलग अलग समस्याएं हैं, तो उसमें दिया जाने वाला भोजन भी अलग अलग होता है। क्योंकि यहाँ पर हमको बात किसी करते हैं भोजन के माध्यम से उपचारात्मक पोषण की बात की जाती है। मेडिसिन अपना काम करती है, लेकिन साथ में भोजन भी अपना काम करता है। तो वहां पर एक डाइटिशियन का या एक न्यूट्रिशनिस्ट का पद होता है। तो ये जो कंपनीज होती है, ये इस प्रकार के पदों को वैकेंट होती है, क्योंकि यहाँ पर हमको बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखकर मील प्लान करना होता है। इसके कई सारे सिद्धांत होते हैं, जैसे अगर कोई पेशेंट है तो उसकी क्या नीड है, उसको कितनी कैलोरी देना है, कौन सी चीज अवॉइड करनी है, कौन सी चीजों को उसमें ऐड करना है, उसकी पसंद नापसंद, मौसम कैसा है, उसकी एज क्या है, उसका हाइट क्या है, उसका वेट क्या है, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मील को प्लान करते हैं। तो ऐसे ही जो अलग अलग ऑफिसेज होते हैं, ऑफिस में अगर कोई कैटरिंग के माध्यम से या कोई कैटर अपना फूड प्रोवाइड कर रहा है, तो वहां पर भी कंपनी ऐसे ही फूड नहीं ले लेती है। वो भी पहले डील करती है कि वो हमारे बजट में है या नहीं है। हमारे यहाँ के जो एम्प्लॉयज हैं उनको वो फूड अगर दिया जाएगा तो किस प्रकार से उसका प्रभाव होगा, किस प्रकार का उनका जॉब प्रोफाइल है, कि वो किस प्रकार का काम कर रहे हैं उनके एम्प्लॉयज, तो उनके लिए किस प्रकार के फूड की आवश्यकता है। तो क्या सामने वाली कंपनी या क्या वो कैटर हमारी इतनी सारी नीड को कंप्लीट कर पा रहा है, तब जाकर वो कंपनी और उस कैटरर के बीच में डील होता है, तब जाकर वो उसको फूड प्रोवाइड करता है। तो ये सारी चीजें कि कोई भी साधारण कैटरर इन चीजों को नहीं बता सकता। जितने भी फैक्ट्स हैं, जितनी भी बारीकियां हैं न्यूट्रिशन के बारे में हो, चाहे वो टेक्सटाइल के बारे में हो या फूड के बारे में हो या मैनेजमेंट के बारे में हो, तो वो एक साइंस एजुकेट पर्सन जो है वही बता सकता है, क्योंकि उसने इन चीजों को बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़ा है। उसने इस चीजों के बारे में जानकारी ली है अंडर ग्रेजुएशन में भी, प्लस पीजी डिग्री में, जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वहां पर। साथ में जैसे मैंने बताया आप लोगों को कि आप लोग इस डिग्री के साथ साथ कुछ न्यूट्रिशन के कोर्सेज होते हैं वो भी कर सकते हैं। जो कई सारे ऐसी यूनिवर्सिटीज है जो सर्टिफिकेट कोर्सेज भी करवाती है। जैसे मैंने बताया था कि स्पोर्ट न्यूट्रिशन के भी कोर्स किया जा सकता है, और साथ में न्यूट्रिशन एंड चाइल्ड केयर के से भी एक रिलेटेड कोर्स होता है, सर्टिफिकेट कोर्स होता है। फूड एंड न्यूट्रिशन का एक सर्टिफिकेट कोर्स होता है, क्लिनिकल न्यूट्रिशन अलग से होता है, थेरेपेटिक न्यूट्रिशन में भी किया जा सकता है। ये आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है कि अगर आपने एचडी में डिग्री ले रखा है या मानव विकास में या टेक्सटाइल में ले रखा है, लेकिन कहीं पर न्यूट्रिशन का पद वैकेंट है, लेकिन आप उसके लिए पात्र नहीं है, आप वहां पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो आप इस प्रकार के छोटे छोटे 6 मंथ के, 3 मंथ के, 1 ईयर के डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स करके इन चीजों को भी या इन सर्टिफिकेट को अपने पास रख सकते हैं, जिससे कि ये आपको यूज में आ जाए कि आप कहीं पर भी अगर ऐसा कोई जॉब निकलता है या कोई ऐसा वैकेंसी निकलता है तो आप उसको मिस ना करें। ये बहुत ज्यादा टफ नहीं होते हैं सर्टिफिकेट कोर्सेज। जैसे इग्नू के बारे में बताऊं कि इग्नू के द्वारा जो करवाए जाते हैं उसमें आपको स्टडी मटेरियल भी वही देते हैं, सारी चीजें देते हैं और एग्जाम भी वहीं पर हो जाता है। तो बहुत ही इजी होते हैं, बहुत आसान होते हैं, इनको आसानी से किया जा सकता है। कई सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो इस प्रकार के होम साइंस को या होम साइंस की डिग्रीज करवाती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी है और देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी है जो इंदौर वाली है, बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल, विक्रम विश्वविद्यालय या विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन, मुंबई यूनिवर्सिटी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी है, इलाहाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। तो इस प्रकार की कई सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो होम साइंस में डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट के कई सारे कोर्सेज करवाती है। और एक सबसे अच्छी बात कि जैसे कि होम साइंस नाम से सबको लगता है कि गृह विज्ञान, तो इस तरफ लड़कियां या गर्ल्स ज्यादा अट्रैक्ट होती है बजाय लड़कों के, ठीक है। लेकिन अब ये थोड़ा सा चेंज हो गया है कि होम साइंस में डिग्री केवल गर्ल्स ही नहीं बल्कि बॉयज भी ले सकते हैं, लड़के भी इस डिग्री को कर सकते हैं या ये डिप्लोमा कोर्सेस उनके द्वारा भी किए जा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ न्यूट्रिशन की बात हो तो सबके दिमाग में ये आता है कि यार खाना बनाना है, लेकिन ये सिर्फ खाना बनाने का काम नहीं है, या खाना बनाना भी इतना आसान काम नहीं होता है। इसमें अगर बॉयज भी अगर डिग्री करते हैं
तो वो इंटीरियर डिजाइनर बन सकते हैं, जो है टेक्सटाइल डिजाइनर है या वस्त्रों के बारे में जानकारी ले सकते हैं, वो एक्सटेंशन एंड कम्युनिकेशन में अगर उन्होंने किया है तो वो काउंसलर बन सकते हैं। तो इस प्रकार से आजकल ये थोड़ा सा चेंज हो गया है, क्योंकि बॉयज भी इस तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं और होम साइंस में सिर्फ गर्ल्स ही न एडमिशन लेकर बॉयज भी एडमिशन ले रहे हैं और उनके लिए भी बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज है, वो भी इसमें अपना करियर बना सकते हैं। साथ में कई सारे ऐसे सरकारी विभाग हैं जो एमएससी और बीएससी होम साइंस के बेसिस पर जॉब प्रोवाइड करते हैं या वहां पर भी वैकेंट पद होते हैं, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, महिला बाल विकास वाला जो डिपार्टमेंट है वहां पर भी एचडी के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं, आंगनवाड़ी वाले डिपार्टमेंट में। तो ऐसे बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज है इसमें कि अगर आपने होम साइंस में अगर आप यूजी डिग्री और पीजी डिग्री करते हैं, अगर आप पीजी डिग्री होम साइंस में करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यूजी डिग्री होम साइंस में होना कंपलसरी, क्योंकि कई बार दिमाग में ये होता है कि हम कॉमर्स ले लें, बीकॉम कर ले, उसके बाद एमएससी होम साइंस कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। आपको अगर एमएससी होम साइंस करनी ही है तो आपको बीएससी होम साइंस कंपलसरी आपको करना ही होगा। साथ में ये चीज कि ये प्राइवेट नहीं होता है, बीएससी होम साइंस और एमएससी होम साइंस रेगुलर ही क्लासेस लगती है और रेगुलर होता है कि आप इसको घर पर बैठकर प्राइवेट नहीं कर सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सारे प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट हैं। अगर थ्योरी होता तो आप उसको घर पर पढ़ सकते थे, घर पर बैठकर उसकी तैयारी कर सकते थे, लेकिन ये सारे प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट हैं कि आप थ्योरी तो पढ़ते हैं, साथ में हर एक सब्जेक्ट का प्रैक्टिकली भी उसको करते हैं या पढ़ते हैं, तो आपको वो चीजें बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आती है। तो इसीलिए ये कोर्सेज जो है वो प्राइवेट नहीं होते हैं, वो रेगुलर ही होते हैं, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल है। मुझे लगता है कि शायद मैं बहुत कुछ हद तक क्लियर कर पाई होंगी। सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? Yes, ma'am. You've covered most of the topic जो आपको cover करनी थी home science पे. You've spoken quite a bit about most of the things. और if there's anything else, you can continue, no doubt. After that, we will ask question and answers. ओके सर, वैसे तो लगभग कंप्लीट भी हो चुका है, क्योंकि जी। सारे कोर्सेज मैं बता चुकी हूँ, सारी चीजें। Okay, then I'll ask you just a few questions. मेरे को भी I want to know a bit about home science. So I have a few clarifications that I have so that I can check with you, and then you will move to the question and answers of the students that have joined us. So in terms of family resource management, so when you say family resource management, उसमें subjects क्या होते हैं? MSc in family resource. Hello. हेलो। Yeah, MSc in Family Resource Management. Is it a good course to take, and what are the subjects in it? हेलो। Hello, ma'am. Can you hear me? हेलो। Hello, Dipali, ma'am. Hello. सॉरी सर, आवाज नहीं आ रहा है। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मुझे आवाज नहीं आ रहा है आपका। I can hear you. Shehzad bhai, can you try? Hello. दीपाली मैम, कैन यू हियर मी? फुजैल भाई, आपकी आवाज मुझे तो आ रही है। I think I'll just call her 1 second. Start introducing careers to your students in a very mild, in a very subtle way. Like let me give an example. So let's say, thank you. Let's say you are. Acha. Hello. Yeah, Dipali ma'am, can you hear me now? Hello. हेलो। Yeah, you're back. Great. Yes.
तो मैं क्या पूछ रहा था मैम, कैन यू हियर मी? हेलो हेलो हेलो, यस मैम, वी कैन हियर यू, कैन यू हियर अस? सर, मुझे आवाज नहीं आ रहा है। क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है? हेलो, our parents. So good, thank you. Now, if that person, if that kid has traveled in a coma, I think somebody is on the background. Can you please mute? Thank you. Okay, so I'm not able to hear Ms. Dipali. In fact, uh, I think it would be great if Zubair Bhai can actually take a few questions regarding the Q&A that we have. So, Zubair Bhai, are you there? Can you hear me? Yes, Mike. Okay, great. So, let's start with the question. Dr. Nabi Rasool Nalatwar is asking us in terms of sport nutrition. Please let us know what are the institutions that are the most popular institutions for sports nutrition. In sports nutrition, you can go through IGNO. IGNO, This IGNO. sure. Beside Okay. it, there are some universities like Mumbai University and Bharatpur University. They are also providing such type of courses. Okay, thank you. Another question from doctor is that is there any course related to event management? I'm not There are sure some event management is a part of home science, is it? it is related to something to home science. There are some private institutes which are providing courses related to event management. Okay, sure. And is it possible to enroll in home science as one of my relatives has completed her PUC through arts in As 2001? as ma'am I already told it, if you want to do PG in home sciences, you have to do graduation in home science already. But there are option if you can do any course No, it's like not nutrition. PG. It says she's completed her PUC in arts in the year 2001. For So can PUC. she join home science now? No, she cannot join home science. And what is the usual cutoff percentages for home science? And are they entrance exams? So if yes, what? There are some universities which are taking entrance examinations, while in some universities they are taking direct admission at college level. So the cutoff marks vary from university to university. And then in terms of agricultural sciences, I've heard that some universities in Dharwad, there are a lot of universities across India that offer a lot of courses on home science. It's an involving subject. In fact, if you actually go to other countries and all of that, they have courses for specific, for maids. They have a course for becoming a butler, which is a very big thing. Like for example, if you go to the president's White House in the United States of America, they have a particular division called the Butlers Division, where you have people who are employed over there as butlers. So that's a very big scheme as well. And in fact, in India, it's home science also is a very still like a evolving sort of stream. Though there are a lot of courses in terms of specialization, but I think it's got a very nice and a good career that people can have, especially in terms of childcare management, in terms of interior design and textile, like how Dipali ma'am had mentioned already. Overall, even I feel that the career opportunities available, you can have career opportunities through home science in the tourism industry, in the healthcare industry, in the dietitian and food industry. You can have careers through home science in the production industry, in the textile industry,
So there are a lot of industries where you can get employed if you have a degree in home science, specifically. Uh, and and Basically it's an art as well as a science, and it gives you a lot of variety of life skills that you can work with, and it's a very unique discipline with a blend of science and art. We usually take everything that happens at home very leniently, but there are lot of science behind that, and especially people who are employed with a large organization, big corporates, people who are employed with big CEOs and directors of large companies. So all of these roles are as good as being an employee in their firm or anything on those lines. So home science is no doubt it's a very great subject. I'm really thankful for the Pali ma'am to have come and shared her inputs on home science with all of us. And I'm sure everybody has benefited a lot through this session. If there are any other questions that anybody has, you please do feel free to ask us. It could be to do with home economics, domestic science, um, anything to do with the environment that individuals use in terms of home science and families, communities, neighborhoods. So please feel free to ask any questions. We're still open. Okay, we have a So question. there was a question Mhm. on family resource management. Sorry? There was a question related to family resource management earlier. Family resource management. That has been answered, no, already. Family resource management is basically, uh, how you apply knowledge in the study of how families actually manage their resources for survival and for their fulfillment, and basically managing budgets and avoiding and solving any sort of financial problems, setting financial goals. And It is very important subject, family resource management, because you have a lot of thinking and planning that actually takes place with individuals, and basic fundamental concepts of resource utilizations and all of that. And in terms of careers after family resource management, you can become a estate or a household manager. You can become a personal assistant. You can become a housekeeper. You can become a personal chef of somebody. You can become a nanny. So all these are careers that come out of a family and resource management. I hope that I answered the question. Yeah. So with that, I think if there are any more questions, we can take them, or we can wrap up for the day. We've shared a link on the Zoom webinar chat, ampindia.org/online career guidance seminar recordings. These have recordings over the last. All of the CGS seminars that we've conducted, and these seminars have been conducted on various topics, specifically on various industries that we've got really specialist speakers from. So you please do visit the CGS recordings and watch all of the videos and specific to each of the industries and careers in the specific industries. So with that, thank you, Dipali ma'am. Really nice of you to have actually joined us, though there were some technical issues towards the end. I think the overall session is quite beneficial, and I'm sure all of the participants have benefited out of this session. And Please feel free to contact info@ampindia.org in case you have any clarifications regarding this session, and we will come back to you with any answers that you will actually require. And with that, I would request Shehzad Bhai to go ahead and close this session. Thank you. Thank you so much, Fuzail bhai. And Dipali ma'am, if you're listening to us, thank you so much for such an insightful session. And to all the participants, as we all know that technical glitches happen, so it was quite unfortunate that we were not able to get answers from Dipali ma'am. But however, if you have any questions in your mind relating to career in home science, you can always write to us on info@ampindia.org.
And I have also shared a link with you all in a chat box. We have already uploaded last 4 sessions that we have done for Career Guidance Seminar Phase 2. Only yesterday's session, it will be uploaded by today evening, and then we'll get this session of today's will be uploaded tomorrow. So we request you all to keep visiting our website if you want to listen to all the recordings, watch all the recordings of the Career Guidance Seminar. On the same page, we also have all the recorded links of our phase 1 of Career Guidance Seminar, which will also give you much bigger picture of choosing your career. So it was a fantastic, it was really fantastic to have you all on board. And we want to let you know that AMP keep organizing such sessions by highly qualified professionals and experts in a particular field to share their learnings and viewpoints to guide not only the youths but everyone. So we request you all to keep joining these sessions, which will help you in choosing the right career, which will help you to succeed in your career. And we also request you to share this with your friends and family and ask them to join these sessions as well. So we are now going to end this session with a dua. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم يسر لنا أمورنا كلها مع راحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Thank you so much, everyone, for joining this session. Since it is Sunday tomorrow, we won't be having any sessions on Sunday. So we'll see you all on Monday. Thank you so much. Okay, Assalamu alaikum. Thanks, Assalamu alaikum. Dipali, Bye-bye. again. I know you can't hear me, but still thank you so much.